Hello students, welcome you all on my YouTube channel Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. Students, I'm here to represent you the class 10th NCERT book English NCERT. The lesson which I'm going to cover here is The Thief's Story, okay, written by Ruskin Bond. Okay, this is the story, The Thief's Story, lesson 2 of the supplementary book of your course, which is The Footprints Without Feet. So in it, I'm going to explain you The Thief's Story, the second lesson of your book, which is authored or written by Ruskin Bond, a very famous, English Indian writer. Okay, so this is a story. Before we move toward the explanation, students, first of all, let us talk about the summary of the story. Before it, I really want to urge you that before just coming to my videos, first of all, you just subscribe the channel, push the bell icon, and also share and like the video, so that maximum of students like you can reach to the videos so that they can also get benefited of it. As you everybody knows that this is the time of lockdown, partly a lockdown, okay, where there is no schools open, no coachings open. Okay, we are completely dependent on online sources and some of the online sources are not relevant yet. Therefore, student, I resolved and I came with explanations of humanities, like social studies lecture of consisting history, geography, politics and economics. Along with it, I'm also covering class 9th to 12th English, okay, both literature and language. Very soon I'm going to produce language lectures also, okay. Due to some technical problems, I'm still not able to give you lectures of language portion. But here I'm again with a new chapter for a new lesson for class 10th. Students, join us and see the videos of the explanation of the second lesson of Footprints Without Feet, The Thief's Story. Okay, so without wasting much of our time, let us move toward the summary. Students, this story deals with a very interesting moral story, or moral of someone. This story is really a very fundamental story which deals about the moral values and relationship. Okay, so here the story begins with a boy whose name is Anil, who is 25 years old and he is an author. Okay, and the character which came into the story in the life of Anil was a thief who was just 15 years old but was very famous for changing his names so that he may not get into the contact with policemen and also the former people whom he looted. Okay, so this way he came to Anil. Anil was watching a wrestling match on TV and he came and asked for a job. Okay, after he played his tactics which he often used to, okay, with other means flattery way of doing so. So therefore he also got impressed, means Anil was also impressed with his flattery and he decided to give him a job. Okay, so both Anil and the thief, whose name was Hari Singh, okay, who called himself as Hari Singh, So he both
both came into a mutual relationship where the thief, means the Hari Singh, went very close to the man. Okay, initially the business of the writing business of Anil was not going so well, but later he's somewhere, he found some money, okay, approx 10,000 for his stories, and he put the money house, he took the money house, which Hari Singh also saw in his pocket or hand, okay, and Hari Singh also saw that the money, means Anil kept the money, beneath his mattress, bed mattress or bed sheet. So he saw it. So watching the money, his mind turned off, okay, and Hari Singh decided to steal the money. Okay, so in the night when Anil was sleeping, he crept solemnly and got the money, okay, stole the money, and fled away toward station. Okay, when he reached station, he actually wanted to catch a train to Lucknow, okay, but suddenly his mind felt the regret, okay, means the way the man, Anil, who taught him how to write and read, in fact he also taught how to prepare food, okay, whom he was going to betray, okay, so who employed him, he was going to betray him, okay, therefore the author therefore Hari Singh decided to set back set back to Anil, and did not betray him any longer. So he decided so. This way he get back to his home, means in the way the rain began falling, and in this way he found that Anil was still sleeping. He took the money was little bit wet, okay, the notes little bit wet, because in the dress in which he took the money, the rain had fallen onto it, and therefore the currency notes were little bit wet, okay. So he took the money, put the money safely back to the mattress, beneath the mattress from where he took earlier, and then he went for sleeping. Okay, next morning Hari Singh woke up a little later, and before it Anil himself prepared tea and snacks for him and came toward him. Okay, so he found him, really Hari Singh found himself very regretted, okay, on his task. But when Anil offered him tea, he also delivered him a 50 rupees note of the same bundle which a night before Hari Singh had stolen. So Anil gave him, hand him over a 50 rupees note, saying it that now you are going to get the 50 rupees regularly as a salary, okay, for all the time. So, but when he touched the money, when Hari Singh touched the money, he found the money was wet. So he realized that Anil also knew about my mischiefs, but okay, he did not want to let me punish. So he was wanting to give me a chance to recover. Therefore he felt it and tried to get away from all these stealings. Okay, so this is what the summary story. उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी अच्छी लगी होगी. नो डाउट कोशिश की गई है. ओके, सो दिस इज़ जस्ट ट्राइंग. इफ़ यू लाइक दिस समरी और द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट मी नेसेसरली. ओके, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप कमेंट करिए. जो भी सजेशंस हैं, कोई कंप्लेन है, एनीथिंग, you can just comment me in the comment section. Okay, so let's move the story further.
नाउ अब इसको हम एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं स्टूडेंट्स कि स्टोरी के एक्सप्लेनेशंस क्या हैं. एज आई टोल्ड यू द स्टोरी मस्ट बी इन अ बाइलिंगुअल मोड. ओके, स्टोरी बाइलिंगुअल मोड में होगी जहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से एक्सप्लेन करूँगा. ओके, एंड will feel that you also will be happy to see the videos in such a mode. Okay, so without wasting time, let's begin it now. Okay, I was still a thief when I met Anil, the narrator, the writer, you know. He is I here. Okay, I was still a thief. Thief is none but the writer. Okay, he said I was still a thief. अभी भी मैं एक चोर था जब मैं when I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर था. एंड दो ओनली 15, और क्योंकि मैं केवल 15 साल का ही था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. बट आई वॉज एन एक्सपीरियंस, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में मीन्स चोरी करने में आई वॉज एक्सपीरियंस्ड, मैं काफ़ी अनुभवी था. एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स अभी तक मेरे हाथ बहुत साफ़ सुथरे थे और किसी को जो है किसी के द्वारा पकड़ा नहीं गया था. देयरफॉर ही सेड दैट फेयरली सक्सेसफुल हैंड. अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच. ओके, अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया. ओके, ही वॉज अबाउट 25. अनिल जो है 25 ईयर्स का था. ओके, अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति. ही लुक्ड ईजी गोइंग, वो बहुत ही जैसे सरल दिखाई पड़ता था. बहुत ही ईजी गोइंग हो मतलब जैसे वो बहुत सरल स्वभाव का हो. काइंड हो, सिंपल हो, ठीक है, दयालु हो. एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और मेरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकदम साधारण व्यक्ति हो, एकदम वो वैसा ही था. आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट. ओके, एंड थॉट I might be able to get into the young man's confidence. I hadn't had much luck of late. Means लेट होने का मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ में लेट होने का मेरा कोई भाग्य नहीं रहा था. And thought I, और मैंने ये सोचा I might be able to get into, कि मैं इनके बीच में शामिल हो जाऊंगा. The young man's confidence, मतलब उस young man के confidence में, उसके confidence लेकर उसके बीच में शामिल हो जाऊंगा. Okay. You look a bit of wrestler yourself, I said. मैंने कहा, means as I told you in the summary that when he approached to Anil, Hari Singh began flattering him. Okay, so this is the part of the flattery. He said, you look a bit of wrestler yourself. आप तो स्वयं में एक कुश्ती के पहलवान की तरह लगते हैं. I said, मैंने कहा, a little flattery helps in making friends. Okay, and further he said, a little flattery means थोड़ी बहुत चापलूसी क्या होती है, helps in making friends, दोस्त बनाने में मदद करती है. He said, a small flattery helps in making friends. So do you, he replied. इसलिए ना तुम्हारे साथ भी ऐसा उसने किया, मतलब ये करता है ऐसे ही. उसने आंसर दिया, so do you, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Okay, so do you means वो पूछता है क्या आप सच में एक पहलवान हैं. Okay, he replied, which put me off, जो उसने रिप्लाई किया, which put me off for a moment, उसने मुझे कुछ क्षण के लिए जैसे स्तब्ध कर दिया, शॉक्ड कर दिया. ऑफ मीन्स शॉक कर दिया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि उस समय तक मैं केवल एक बहुत दुबला पतला लड़का था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, मीन्स जहाँ पे भी ये आई की बात हो रही है वो थीफ बोल रहा है, राइटर बोल रहा है. वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बहुत ही मॉडेस्टली दयालुता के साथ, मतलब मध्यम स्वर में मैंने कहा, आई डू रेसल्स अ बिट. ओके, कि मैं रेसलिंग करता हूँ. ठीक है. व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है. हरि सिंह. आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया और मैंने कहा मेरा नाम हरि सिंह है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रखता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस,
जो मुझे पुलिस से आगे रखता था, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो लोगों ने मुझे पहले काम दे रखा था या जिन लोगों को मैं धोखा दे चुका था, ऐसे लोगों से और पुलिस से ये नाम मुझे दूर रख सकता था। ओके, या इसीलिए मैं हर बार अपना नाम जो है चेंज करता रहता हूँ। सो इस तरह से उसने अपना इंट्रो दिया। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल जो है उसने वेल ऑयल्ड रेसलर्स से जो है बातें की, जो बहुत तेल वेल लगा करके जो पहलवान लड़ रहे थे उनसे बातें की। हु वर ग्रंटिंग, जो कहीं ना कहीं क्या रहे थे, गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग, उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे थे। ईच अदर अबाउट, ना एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ जैसे उठा के फेंक रहे थे, मतलब लड़ रहे थे वो। दे वर कम्बैटिंग। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास बहुत कुछ नहीं था कहने के लिए। अनिल वॉकड अवे, अनिल आगे चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और साधारणतः मैंने भी उसका पीछा किया। ओके, हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो जब उसने हेलो कहा तो मैंने उस हेलो कहते हुए मैंने क्या किया, मैंने उसको अपनी सबसे अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा प्रार्थना झलकता। कुछ लोग ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों, तो एक अपीलिंग स्माइल कहलाती है बच्चों। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अपना सबसे अपीलिंग, सबसे ज़्यादा जो है रिक्वेस्टिंग स्माइल मैंने शो किया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुमको पे नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ। हेलो अगेन ही सेड, दोबारा उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी सबसे ज़्यादा अपीलिंग स्माइल प्रेजेंट किया, जैसे मैं कुछ मांग रहा हूँ। और फिर मैंने कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, थीफ ने कहा, आई सेड बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन बट उसने क्या कहा, राइट अनिल ने, लेकिन मैं तुमको पे नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं पैसा इसका नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, ओके, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, जब उसने ऐसा आंसर दिया तो मैं कुछ क्षण के लिए सोचने के लिए रुक गया। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद उसको अब ये फील हो रहा, शायद मैंने जिस आदमी को चुना आज, मैंने उसमें मिसजज कर दिया, मतलब उसको जज करने में मुझसे गलती हो चुकी थी। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उस आदमी से पूछा कि आप ठीक है सैलरी नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। ओके, कैन यू कुक, अब अनिल ने फिर से आंसर क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, कि क्या तुम खाना बना सकते हो। ओके, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने भी मतलब थीफ ने झूठ बोलते हुए बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, अनिल ने कहा अगर तुम कुक कर सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, ठीक है, तो शायद ये हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं। अगर तुम खाना बना सको तो ये संभव है कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं। ओके, सो he took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप। ओके, वह मुझे ले गया, took me to his room, अपने रूम की तरफ, over the जमुना स्वीट शॉप, जो कि जमुना स्वीट शॉप के, जुमना स्वीट शॉप के उस पार था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं इस बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया था, ओके, मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, ठीक है, क्योंकि वो जो खाना उसने बनाया था, उसको खाना बनाना भी नहीं तो, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोला था। आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, ओके, सो बट द मील आई कुकड, लेकिन जो खाना मैंने उस रात पकाया था, दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही भयानक हो सकता है। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने खाना खाया नहीं, उसको उठा करके एक सड़क छाप डॉग को, कुत्ते को दे दिया उसने। एंड
टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा यहाँ से चले जाओ, ओके, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने सबसे अपीलिंग वे से मैं मुस्कुराता रहा, ठीक है, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया, ओके, वो भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मुझे ना मेरे सिर पे थपथपाया, एंड सेड नेवर माइंड, और उसने कहा कोई बात नहीं है। ही हैड टीच मी टू कुक, उसने कहा ही वुड टीच मी टू कुक, कि वो खाना बनाना मुझे सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी, उसने मुझे यह भी सिखाया, टू राइट माई नेम, एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, ओके। ही ऑल्सो टॉट मी, उसने मुझे ये भी सिखाया, टू राइट माई नेम, कि मैं अपना नाम कैसे लिख सकता हूँ, एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच, कि वो जल्द ही सिखाएगी, मी टू राइट होल सेंटेंस, कि वो जल्द ही मुझे जो है पूरे सेंटेंस को लिखना सिखाएगी, ओके, एंड टू ऐड नंबर्स, इसके अलावा नंबर्स को ऐड करना सिखाएगी, ओके। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक, ना, मैं आभारी था कि आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट, कि अगर मैं एक बार लिख सका, लाइक एन एडुकेटेड मैन, कि अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति तरह मैं अगर एक बार भी लिख सका, देयर वुड बी नो लिमिट ऑफ टू वॉट आई कुड अचीव, तो उसके बाद कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी कि मैं क्या क्या अचीव कर लूँगा, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन। आफ्टर इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये अनिल के लिए एक बहुत ही प्लीजेंट वर्किंग इन्वायरमेंट था वहाँ पे, बिल्कुल ही। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह जो है चाय बनाया, एंड देन वुड टेक मी माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और उसके बाद टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, उसके बाद मैं अपने बचे हुए समय में दिन भर की जो सप्लाइज़ होती है उसको ख़रीदने के लिए गया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 अ डे, और यूजुअली क्या करने लगा कि सामान ग्रोसरीज और प्रोविजंस ख़रीदने में हर रोज़ मैंने ₹1 प्रॉफिट या चुराना शुरू कर दिया, ओके। सो आई थिंक ही न्यू, ना, मुझे लगता है कि वह जानता था, आई मेड लिटिल मनी, कि मैंने थोड़े बहुत पैसे बना लिए हैं, दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो ये तो समझ लिया कि इससे जो है हम और इससे हम जो है किस तरह से और मनी जनरेट कर सकते हैं, आई थिंक ही न्यू, आई मेड द लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे उसने उसका बुरा ही न माना हो, इस तरह से उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे उसने उसका बुरा ही न माना हो। आई थिंक ही न्यू, ना, मुझे लगता है वो जानता था, आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैंने थोड़े से पैसे बनाए हैं, ओके, दिस वे, इस तरीके से, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो उसका बुरा मान रहा हो, ओके। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स फॉर टुडे। आज हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा है, इसके आगे नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे और लेक्चर को थोड़ा सा स्पीड के साथ रैपिडली आगे बढ़ाएंगे ना। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर एंड द समरी बाय समरी बाय मी। सो स्टूडेंट्स, हाउ डिड यू फील दिस लेक्चर? आपको ये लेक्चर कैसा लगा? Okay, please comment me in the comment section. And one more thing that you have to do is to spread the video lectures as much as possible so that maximum of people can reach without obstacles to these videos. Okay, so till then students, you enjoy yourself and stay at home, enjoy studying in a new scenario. So till then students, thank you very much, enjoy yourself, bye bye. Okay, so this is what thank you everyone, bye bye.